Hello everyone, how are you all? I hope you all are having an amazing day. So today we are going to study the later part of chapter number 8, that is waste management. So what are the contents available in this chapter? We will have a quick look at it, what we have completed and what we are going to do further. Okay, so in last lecture we have seen the introduction, factors of waste management, different sources of waste, domestic waste, industrial waste and commercial waste, clinical or biomedical waste, agricultural waste, animal waste, nuclear waste, mineral waste and the types of waste. So we have seen in the slides, you can get all the things in the last lecture. So today we are going to see more than this, matlab more than the different types of waste, that is solid waste, liquid waste and gaseous waste. Yeah, more than this we are going to see in the next lecture, means today's lecture. So we are going to see the classification of waste according to its we are going to see the classification of waste according to its मतलब डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि वेस्ट जो हम लोग करते हैं, मतलब जो भी वेस्ट होता है, दैट वेस्ट इज डन and it becomes a disaster for all of us. So classification of waste depending on the content and impact of waste, it has been classified in two classes. First one is hazardous waste and second one is non-hazardous waste. So what is hazardous waste? From the word only we can understand that hazardous means something which is dangerous. Okay, so hazardous waste means something which is dangerous. Hazardous waste is the waste that has substantial or potential threats to the public health or environment. Now see, a substantial means what? अभी अगर उसने कुछ तकलीफ नहीं दी तो आगे दे सकता है. Potential also means the same thing. Like suppose you are having multiple glasses in your dustbin. Yeah, you are having multiple glasses in your dustbin. So जब तक वो glasses dustbin में है तब तक तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट समझो अगर वो ग्लासेस तुमने कहीं फेंक दिए कूड़े में, ओके, और लाइक आई सेड यू दैट वी हैव अ घंटा गाड़ी एट आवर एरिया. सो अगर तो तुमने वो फेंक दिए, मतलब उस गाड़ी में दे दिए डालने के लिए, और समझो द वर्कर्स हु वर्क इन दैट वेस्ट व्हीकल, समझो उनका पैर पड़ गया उस पे, समझो उनका पैर पड़ गया उस पे, तो क्या हो जाएगा, उसको वो चुभ सकता है. और अगर समझो बहुत ही शार्प होगा वो ग्लास तो उनका पैर भी कर सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. अदर देन दैट समझो इफ सम थिंग्स आर देयर व्हिच आर हार्मफुल केमिकल्स, और अगर वो हमने डाल दिया किधर और समझो उसको किसी एनिमल ने खा लिया या एनिमल ने सूंघ लिया, उसकी वजह से क्या होगा, दैट एनिमल आल्सो विल गेट कैन गेट समथिंग विच इज डेंजरस फॉर द हेल्थ. उसके बाद नेक्स्ट चीज ऐसी है कि अभी जो मास्क है, द मोस्ट डेंजरस एंड हजार्डस थिंग प्रेजेंट इन द वर्ल्ड टुडे इज द मास्क. या तो मास्क की वजह से क्या होता है कि जो इंसान है वो मास्क पहनता है, एंड आफ्टर वेयरिंग द मास्क, मोस्टली द सर्जिकल मास्क जो यूज एंड थ्रो होता है ना वो वाले, उसको हम लोग निकालते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं. क्यों? क्योंकि वो इधर उधर किधर भी नहीं फेंक सकते, इसलिए हम निकालते हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं. समझो हमने वो मास्क डस्टबिन में फेंक के वो कोई और लेके गया हमारा डस्टबिन और ऐसे ही किधर भी फेंक दिया, और समझो एनिमल्स animals put the mouth in the mask, so there is a possibility that the animal will also get affected from the same disease which we are suffering, that is coronavirus. Now up till now it is not proved that the animals can get coronavirus, but there is a possibility. Yeah, I'm talking about November 2020, क्योंकि इसके आगे हो सकता है. अगर तुम लोग अभी देख रहे हो तो अभी नहीं ऐसा प्रूव हुआ, बट आगे हो सकता है, we never know. Then characteristic hazardous waste are materials that are known or tested to exhibit one or more of the following hazardous traits, that is ignitability. या मतलब hazardous waste किसको बोल सकते हैं,
जिसमें ऐसी पावर हो जो इन 3 चीजों में से तुम अडॉप्ट कर सकते हो, मतलब वो वेस्ट अडॉप्ट कर सकता है। फर्स्ट वन इज इग्निटेबिलिटी। इग्निटेबिलिटी इज द पावर ऑफ you can say something which can catch fire. Yeah, ignitability is the power of something which can catch fire. Yes, so ignitability के वजह से क्या हो सकता है, कोई भी चीज जो हमने हमारे वेस्ट में डाली है, अगर वो फायर प्रोड्यूस करता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो फायर वेस्ट को और हजार्डस या और ऐसे तरीके से बना सकता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गेटिंग इट? सो विच इज दैट थिंग? पहली तो है इग्निटेबिलिटी। इग्निटेबिलिटी इज समथिंग जिसके वजह से फायर कैच करने के चांसेस ज्यादा है। ओके, फायर कैच करने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी। या नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी, मतलब ऐसी एबिलिटी किसी चीज की जिससे वो रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट मतलब मतलब समझो इतना सा कुछ है, उस पे अगर कुछ और गिरा तो वो ब्लास्ट, और यू कैन से समथिंग विच वाज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टेड। सो रिएक्टिविटी। एंड नेक्स्ट इज द कोरोसिटिविटी। कोरोसिटिविटी मतलब गंजने, मतलब जो रियल थिंग है ना वो ना होके कुछ ऐसी चीजें बन जाए जिसके वजह से जो रियल थिंग है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो, और मतलब it becomes bad for us. Yeah, bad for us, bad for the human nature, bad for everything around it. Okay, hazardous waste का एक एग्जांपल मैं बोलना एक चाह रही हूँ कि प्लास्टिक। I have seen a very good video. I have seen a very good video in my past in 2-3 days that एक आदमी होता है, वो बोल रहा है कि हमको चिप्स का पैकेट कैसा खोलना चाहिए, या हमको चिप्स का पैकेट कैसा खोलना चाहिए। सो पैकेट को लेके यू शुड नॉट रिमूव समथिंग फ्रॉम दैट। अगर रिमूव करेंगे तो फिर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर का प्लास्टिक निकल सकता है और वो जा सकता है। एंड वेन एवर यू आर रिमूविंग द प्लास्टिक और यू आर थ्रोइंग इट, ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस बड़े बड़े जो प्लास्टिक्स है वो निकाले जाते हैं, और छोटे छोटे जो प्लास्टिक्स है ना उनको इग्नोर किया जाता है। इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट नो पार्ट ऑफ द प्लास्टिक डिटैचेस फ्रॉम द ओरिजिनल रैपर। या मतलब कैसे तुम लोग फाड़ोगे, ऐसे फाड़ोगे, या ऐसे फाड़ने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू टेक आउट दैट रैपर, यू आर गोइंग टू कीप इट स्टक। स्टक रखने की वजह से व्हाट हैपेंस, जो प्लास्टिक होगा इन अ होल वो जाएगा रिसाइकलिंग के लिए। ऐसा नहीं कि उसके पार्ट जाएंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बड़ा रैपर जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं। सो दैट कैन बी हजार्डस वेस्ट। इवन दो even though plastic is neither ignitability, neither possess ignitability, neither reactivity nor corrosivity, but then too it is hazardous because we are using it in improper way. Getting it? Next, इधर उन्होंने बताया है कि hazardous waste क्या है। फर्स्ट वन hazardous waste में है GTX oil और castor oil. Why is it hazardous waste? You know, because it is a fossil fuel. और अगर वो फ्यूल बाय चांस कोई एक पी लेता है, मतलब नॉट वी आर नॉट दैट स्टूपिड, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मतलब एनिमल्स ही उसको चाटेंगे या कुछ तो करेंगे। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है देन देयर आर चांसेस दैट this oil may create some disease or some insensitivity in the animals that they may go mad or they may do something which they are not allowed to do. फिर उसके बाद बैटरीज है और द एम्प्टी सेल्स, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हम लोग दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन रहता है और वो सॉल्यूशन इज डेंजरस फॉर अस। फिर उसके बाद है बल्ब्स, या उसके बाद है बल्ब्स। जो बल्ब्स है उसमें कांच होती है, ऑल्सो देर आर सम हैलोजन मटेरियल जिसके वजह से लाइट ज्यादा होती है एंड इट कॉजेस प्रॉब्लम। फिर उसके बाद है टिन्स। सो टिन्स क्या करेंगे, टिन्स दे विल नॉट डू मोर एनीथिंग, बट whenever we are removing the upper cover of the tin तो वो शार्प हो जाते हैं एजेस, और एजेस शार्प होने की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट
whenever a dog or a donkey or any animal is putting mouth in that tin, there is a possibility that it will cut the, अब ऐसा मुंह डालो तो नाक कट हो सकता है, चिन एरिया कट हो सकती है, हेड एरिया कट हो सकती है, पॉज कट हो सकते हैं। पॉज यू नो ना, जैसे हमारे हैंड्स एंड लेग्स है वैसे एनिमल के पॉज होते हैं, PAWS। उसके बाद है नॉन हजार्डस वेस्ट। नॉन हजार्डस वेस्ट इज एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट which according to regulations cannot be added to dumpster or sewage line. Example of non-hazardous waste could be sugar, lactic acid, bromides or carbonates, just to name a few. अभी hazardous waste का opposite obviously होगा non hazardous waste. So hazardous जितना dangerous है उतना ही safe non hazardous waste है. But waste होता है, हमको उसको अच्छे से ही डिस्पोज करना होता है। सो हजार्डस वेस्ट मतलब ऐसा क्या जो हम लोग मतलब उसका ज्यादा डेंजर नहीं होता। यू कैन नॉट कंसिडर इट टू बी अ फैटल थिंग, मतलब उससे किसी की मौत हो जाएंगी या कुछ नहीं। बट नॉन हजार्डस वेस्ट शुड ऑल्सो बी कंट्रोल वेरी वेल। Now this is an example of non-hazardous waste. I'm sorry, the image is a bit broken, or you can say it is enlarged. Pixel बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। So non-hazardous waste में ये सब चीजें आएंगी। Okay, tell me, the tomatoes are there, the peels of carrot are there, the egg shells are there, then tea is there, tea का जो क्या बोलते हैं उसको, चाय पत्ती है, फिर कैप्सिकम के सीड्स है, फिर ऐसी चीजें हैं जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, जैसे कि यू कैन से दैट ऑल दिस वेस्ट आर वेट वेस्ट। या वेट वेस्ट मतलब ऐसी चीजें जो इजीली डिकम्पोज होती है, वी हैव ऑलरेडी सीन हियर। डोमेस्टिक वेस्ट में ये जो डस्टबिन है उसमें सब वो चीजें हैं जो नॉन हजार्डस है, बिकॉज दीज आर द वेट वेस्ट। और वेट वेस्ट तो डायरेक्टली हम लोग डंप कर देते हैं इन द ग्राउंड, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच नॉन हजार्डस। फिर नॉन हजार्डस वेस्ट के टू टाइप्स है। ओके, फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी नॉन हजार्डस का एक एग्जांपल मैंने दिया, but this is not a satisfactory example, so I'm going to take you to the another thing, that the non-hazardous waste is a huge concept and is further classified as biodegradable waste and non-biodegradable waste. So what is biodegradable waste? So biodegradable waste, bio मतलब अर्थ, डिग्रेडेबल मतलब अर्थ का ऐसा कुछ हिस्सा जो इजीली हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक प्लास्टिक जो होता है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स द प्लास्टिक रिमेन्स सेम। बट डिग्रेडेबल से क्या होता है, आज अगर जैसे कि इंसान की बॉडी है, व्हेन द पर्सन डाइज, do you think it will be the same? No. Why? Because human beings are biodegradable after their death. So biodegradable waste includes any organic matter in waste which can be broken down into carbon dioxide, water, methane or simple organic molecules by microorganisms. मतलब ऐसी चीजें जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली अटैक कर सकते हैं। लाइक इफ वी आर टॉकिंग इन हिंदी, कि ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो सकती है। इफ यू आर टॉकिंग इन मराठी, अशी वस्तू जी खूप सोप्यापणाने कुजू शकते, that is called as biodegradable waste. To be very precise, very much easy, the things which undergo disintegration, yeah, the things which can get spoiled are called biodegradable waste. Other living things by composting, aerobic digestion, anaerobic digestion और similar process. मतलब कैसे हो सकता है, कोई भी उसको कंपोस्ट कर सकता है। कंपोस्ट मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एरोबिक डाइजेशन मतलब, एरोबिक मतलब आजू बाजू की हवा के वजह से उसमें चेंजेस आते हैं। एनारोबिक डाइजेशन मतलब आजू बाजू में कुछ भी ना हो फिर भी उसमें चेंज हो जाते हैं। लाइक आई विल टेल यू वन एग्जांपल, टेक वेफर्स, क्लोज द जार and keep it
at one corner of your house for 6 months. 6 months is very long, but I'm telling you for safe side, 6 months. Do you think that wafers will be the same after that? The answer is no. Why no? Because the wafers are made up of potatoes, and the potatoes are under the biodegradable waste, and that's why they can get spoiled. Yeah. So biodegradable का waste का वापस से example vegetables से आएगा, क्योंकि vegetables are the best examples of the biodegradable waste. Yeah. फिर है non biodegradable waste. Non biodegradable waste are the materials that can be defined as a kind of substance which cannot be broken down by the natural organism and acts as a source of pollution. मतलब जैसे कि अब अभी इधर ये खुद से ही स्पॉइल हो जाते हैं, इसको बाहर का एजेंट रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी वो खुद से स्पॉइल हो सकते हैं, बट दिस इज नॉट द केस इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. कुछ भी हो वो खराब ही नहीं होते. लाइक यू कैन से यू आर हैविंग अ प्लास्टिक प्लेट, मतलब जो जिस बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं, प्लास्टिक प्लेट, अगर तुम उसमें 10 साल खाना खाओ फिर भी वो सेम ही रहेगा. अगर उसको तुम लोग 10 साल किधर उठा के रखो फिर भी वो 11th ईयर में सेम हो जाएगा, सेम रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की ये स्पेशलिटी है कि सपोज अगर इट इज ब्रोकन डाउन एंड वी हैव पुट इट असाइड समवेयर, फिर भी वो अपना एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ता, किसी न किसी वे से वो वापस आ जाता है. ओके इससे क्या होता है, जो वेस्ट थिंग्स होते हैं ना वो इजीली ऐसी चीजों में कन्वर्ट होते हैं कि वी गेट टू नो दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच कॉजेस पोल्यूशन. Okay, so unlike biodegradable waste, non-biodegradable waste cannot be easily handled. Non-biodegradable waste are those who cannot be decomposed or dissolved by natural elements. मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर सकते, उसको डिकम्पोजर्स अटैक नहीं कर सकते, नेचुरल सॉइल उसको खा नहीं सकता. बस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज रीयूज और रिसाइकल. These are the two options available for non-biodegradable waste, that is reuse and recycle. Then these are the examples of non-biodegradable waste. इसमें straws है, इसमें plastic glasses है, इसमें spoons है, इसमें bottle है. So I can say that the things which are made up of thermocol and made up of plastic, मतलब अगर 100 चीजें हैं तो 90 चीजें तो यही होंगे which are made up of thermocol and which are made up of plastic, which will come under non-biodegradable waste. फिर अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट. अभी हो गया, हमने टू टाइप्स देख लिए. पहले तो देखा था सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसेस वेस्ट. उसके बाद देखा था हजार्डस वेस्ट एंड नॉन हजार्डस वेस्ट. फिर नॉन हजार्डस वेस्ट में हमने देखा कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. Now they are talking about one more type, that is persistence waste, recyclable waste and non-recyclable waste. We will talk about it. So persistent waste मतलब जो easily degrade नहीं होते, poorly degrade होते, those are known as persistent waste. मतलब उससे क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है बट हमको उससे कुछ फायदा नहीं होता एक बार वो चीज अगर खराब हो गई तो. The persistence wastes are shown here, that eggshells are there, yeah, or the क्यों eggshells ऐसे हो गए, because of pesticide, because of petroleum products, because of heavy metals. So मतलब क्या, persistent waste are those waste जो waste हो भी गए तो भी वो हम किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, and it will act as a very big pollutant for the environment. फिर है रिसाइक्लेबल वेस्ट. द बेस्ट टाइप ऑफ वेस्ट आई कैन से इज द रिसाइक्लेबल वेस्ट. व्हाई इट इज द बेस्ट टाइप ऑफ वेस्ट, क्योंकि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन एज पर आवर कन्वीनियंस. या सो दैट इज कॉल्ड एज रिसाइक्लेबल वेस्ट. So recyclable materials include many kind of glass, paper, cardboard, metal, plastic, tires, textile, batteries and electronics.
आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन व्हाट इज दिस। सो रिसाइक्लेबल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो हम लोग अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। तो इसमें पहला नाम लिया गया है ऑफ ग्लास। तो ग्लास एक ऐसी चीज है कि अभी अगर हम लोग ग्लास यूज किए वो टूट गया तो हम लोग उसका न्यू ग्लास बनाने के लिए दे सकते हैं। पेपर, ऑब्वियसली आई हैव टॉक टू यू इन द लास्ट लेक्चर के रद्दी वाले आते हैं हमारे पेपर्स लेके जाते हैं। फिर कार्डबोर्ड मतलब पुट्टा। फिर मेटल, मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेटल्स आते हैं। प्लास्टिक, वेरी इजी एग्जांपल, टायर्स जो व्हीकल्स को होते हैं वो हम लोग कभी घर पे नहीं लाते, वो उधर ही रखते हैं और फिर वो टायर्स वो लोग कंपनी वालों को देते हैं और उसके नए टायर्स में। टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े, या कपड़े भी अच्छे से हम लोग देके उसको रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं। बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या द कंपोस्टिंग or other reuse of biodegradable waste such as food or garden waste is also a form of recycling. So मतलब biodegradable waste में ये सब जो चीजें हैं इसको भी हम लोग रीयूज कर सकते हैं। कैसे? उसको हम लोग एक खड्डे में डालेंगे, वो खड्डा कवर करेंगे और आफ्टर सम मंथ्स वी कैन यूज द सेम सॉइल एज a manure to grow the same trees or to grow the same fruits. ओके, सो रिसाइक्लेबल वेस्ट में क्या है देखो, स्टील, टिन और कैन से ये हम लोग दे सकते हैं वापस। जो भंगार वाला है उसको ये सब चीजें देते हैं हम लोग तो हमारे एरिया में देते हैं ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। और उसकी वजह से क्या होता है, ही गिव्स अस मनी, वो हमको पैसे देता है और पैसे देने के बाद वो हमसे लेके जाता है और he gives it to some person or he gives it to some प्राइम लोकेशन जहाँ पे ये सब चीजें एक्सेप्ट होती है। और एक्सेप्ट होने के बाद उनको भी पैसे मिलते हैं, जो बनाता है उनको भी पैसे मिलते हैं और जो देता है उनको भी पैसे मिलते हैं। सो दिस इज रिसाइकलिंग इज नेवर अ वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद है नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट। नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक कंज्यूमर आइटम्स required items, some food storage containers, dishware, vinyl, disposal diapers, toys, formica, fiberglass, foam material and plastic attached to other materials such as kitchenware or auto parts. So non recyclable मतलब ऐसी चीजें जो हम लोग एक बार यूज करें तो वापस उसको यूज नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते। Okay, so let us see at the examples. Ropes, chain and cordage, batteries, diapers. Diapers इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा एब्जॉर्बेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। इसलिए डायपर्स और ऑल्सो मेन मतलब जिनके घर में बच्चे होते हैं उनको मालूम होगा कि एक बार डायपर यूज किए तो उसको वापस हम लोग यूज नहीं कर सकते और रिसाइकल भी नहीं कर सकते। या लैटेक्स ग्लोव, फूड, clothes, styrofoam, shoes, hardcover books. Okay. Then e-waste. Okay. ऐसा वेस्ट जो शायद इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ, that is the e-waste. So e-waste refers to the electronical waste or electrical equipment that has been discarded. अभी देखो मैं यूज कर रही हूँ मेरा लैपटॉप, अभी समझो ये लैपटॉप पुराना हो गया। इफ दिस लैपटॉप हैज गॉन ओल्ड, मैं क्या कर सकती हूँ, आइदर अगर कोई ऑफर चल रही होंगी तो मैं मेरा रिप्लेस कर सकती हूँ लैपटॉप, बट ऑफर्स आर नॉट ऑलवेज ऑन। समझो ये वायर जो है, यहाँ पे एक वायर है, वो मैं क्या करूंगी, कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये जो फोन है तो फोन का क्या होगा कि फोन जो है अभी यूज कर रही हूँ, अभी घर में हमारे तो इतने फोन्स पड़े हैं जो अभी बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहे। So those will be included into the e-waste. This includes working and broken items that are thrown in the garbage or donated to a charity resale like a goodwill. Often, if the item goes unsold in the store, it will be thrown away. Oh God! मतलब क्या? अगर नया पीस है या नया कोई गैजेट है इन द शॉप, तो फिर सीन ऐसा है कि अगर तुम लोग उसको यूज नहीं कर रहे या उसका कोई बायर नहीं है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मे बी वो ऐसे ही फेंक देंगे।
वेरी बैड थिंग। फिर उसके बाद है द एग्जाम्पल्स ऑफ ई वेस्ट। आई विल टेल यू, जितने भी मैं फिगर आउट कर सकूँ उतने सब चीज़ें मैं बता रही हूँ। मुझे सबसे पहले दिख रहा है कंप्यूटर का मॉनिटर, फिर कंप्यूटर का सीपीयू, फिर द केबल्स, देन आई कैन सी द कीबोर्ड, आई कैन सी द यू कैन से सीडी होल्डर। फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है कि यूएसबी जहाँ पे कनेक्ट करते हैं वो वाला। फिर इस साइड मुझे दिख रहा है प्रिंटर। फिर पीछे की तरफ दिख रहा है कि जो स्टैंड जिसपे हम कंप्यूटर वगैरह रखते हैं वो। उसके बाद मल्टीपल वायर्स आर देयर। उसके बाद मल्टीपल फैंस आर देयर। फैंस मतलब जो सीपीयू के अंदर के फैंस होते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। So I can see many things which are connected and related to a computer. So these all will come under the e-waste. Okay. तो ई वेस्ट का फुल फॉर्म यही है कि इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट। फिर इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट, मतलब ई वेस्ट के वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है या हो रहा है, बिकॉज ई वेस्ट अभी तो बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। जितना मार्केट किसी भी थिंग के लिए नहीं है उतना मार्केट इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए है। So e-waste can have a damaging effect on the soil of a region। मतलब समझो एक एरिया है, वहाँ पे सब ई वेस्ट डाल रहे हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी के वो जो ई वेस्ट है उसके अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वो उस सॉइल पे गिर जाएगा। सॉइल मतलब मट्टी, उस पे गिर जाएगा और उसके वजह से सॉइल खराब हो सकती है। फिर एज ई वेस्ट ब्रेक्स डाउन इट रिलीजेस टॉक्सिक हैवी मेटल्स। मतलब टॉक्सिक हैवी मेटल्स मतलब अभी अगर हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। सो मदरबोर्ड के सोल्डरिंग के लिए दे आर यूजिंग हैवी मेटल्स। फिर फ्लॉपी डिस्क के लिए दे आर यूजिंग हैवी मेटल्स। फिर हार्ड डिस्क के लिए दे आर यूजिंग हैवी मेटल्स। उसके कनेक्शन के लिए दे आर यूजिंग हैवी मेटल्स। वायर्स होते हैं उसके अंदर जो कनेक्टिंग स्कीम या कनेक्टिंग शेड्यूल रहता है, it is having the heavy metals. So such heavy metals include lead, arsenic and cadmium. When these toxins leach into the soil, they influence the plants and trees that are growing from this soil। मतलब वो influence कैसे करते हैं, वो उधर जाते नहीं बट सॉइल हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब। तो इसकी वजह से क्या होता है, मे बी प्लांट बढ़े ही ना, या बढ़ गया है फिर वो अचानक से खराब होने लगा। एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर ऑफ ई वेस्ट। रीजंस टू हैव डिजायर टू गेट मोर एंड मोर वेस्ट। अभी रीजंस क्या है जिसके वजह से वेस्ट बढ़ रहा है। फर्स्ट वन तो है एडवांस इन टेक्नोलॉजी। सी यू कैन सी ऑल द टेक्नोलॉजी हियर। So obviously advance in technology is bringing e-waste। एडवर्टाइजिंग, अभी एडवर्टाइजिंग मतलब अभी तो लॉकडाउन में हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का कुछ शुरू किया, खुद का बिजनेस बोलो, खुद का शॉप बोलो, खुद का सर्विसिंग सेंटर बोलो या व्हाट्स एवर यू कैन से। सो उसके वजह से दे आर चेंजिंग द दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीपल पैम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, बुकलेट्स, कैटलॉग। उसके वजह से बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है। चेंज इन द वैल्यू, ओके, मतलब जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा उतना उस पे प्रोटेक्शन ज्यादा, और जितना प्रोटेक्शन ज्यादा उतना वेस्ट ज्यादा। हियर एंड नाउ कल्चर, मतलब अगर इधर उधर ज्यादा करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा ज्यादा। टेक अवे एंड थ्रो अवे, मतलब यूज एंड थ्रो जिसको बोलते हैं ना, जब भी पेन्स भी निकले हैं 2-3 रुपीज के पेन्स मिलते हैं, यूज एंड थ्रो, एक बार यूज करो फेंक डालो, एक बार यूज करो फेंक डालो। सो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से मोर एंड मोर वेस्ट जनरेट हो रहा है। इफेक्ट्स ऑफ कम्यूरिज्म ऑन द एनवायरमेंट, मतलब वेस्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है इन दिस वर्ल्ड। या सो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली जब हम लोग वेस्ट डंप करते हैं किधर, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द natural resources may get destroyed or damaged due to the heavy metals। sustainability has suffered, मतलब जो चीजें हम यूज कर रहे हैं हमारे आगे की जनरेशन उसको इजीली यूज नहीं कर सकते। व्हाई एंड व्हाई, ओनली बिकॉज ऑफ आवर इररिस्पॉन्सिबिलिटी। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेस्ट। क्योंकि वेस्ट एक ऐसी चीज है जो एनवायरमेंट को डायरेक्ट अफेक्ट करती है।
Yeah, rise in the environmental pollution, this is the main thing. Waste जहाँ pollution वहाँ, okay, so जहाँ waste नहीं वहाँ pollution नहीं, as simple as that. Yeah, क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट, एसिड रेन होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, फिर पोल्यूशन बढ़ जाता है. दिस कॉजेज द चेंज इन द क्लाइमेट. इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेस्ट, मतलब जब भी वेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो ही पोल्यूशन या एनवायरनमेंट पूरा खराब हो जाएगा. देन प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक हेल्थ, ऑफ कोर्स जो भी स्लम्स वगैरह होते हैं वो लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि दैट दे गेट सिक. उनको देख के पता चलता है. तो ऐसा बोलते हैं कि उसको अच्छी जगह पे रखो. ऑलवेज पीपल प्रेफर इन बीइंग एट गुड प्लेसेस. व्हाई? बिकॉज वेस्ट कॉजेज अफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ. फिर है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिज्म. ओके, मतलब सबसे बड़ी चीज हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं कि वेस्ट को हम लोग अगर प्रॉब्लम समझते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है. There are three solutions which are directly connecting itself to the R's: reduce, reuse and recycle. So what is reduce? Reduce मतलब कम करो, वेस्ट को कम करो, जितना हो सके उतना वेस्ट तुम लोग कम करो. रीयूज, ऐसी चीजें लो जो बार बार तुम लोग यूज कर सको ना. लाइक आई कैन से, अगर हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, एवरी टाइम वी आर ब्रिंगिंग द प्लास्टिक बैग्स, उससे अच्छा क्या करो, टेक अ क्लॉथ बैग या टेक अ जूट बैग. ऐसे कुछ तो बैग ले लो जो एक बार यूज करने के बाद हम लोग वापस यूज कर सकते हैं. रीयूज में दूसरा भी बहुत ही जो चल रहा है, लाइक मास्क. मास्क को हम लोग सर्जिकल मास्क न लेते हुए या फिर यूज एंड थ्रो मास्क न लेते हुए ऐसे मास्क लो जो हम लोग धो के वापस पहन सकते हैं. उसके बाद रीयूज में एक और चीज आएंगी, जो पेन्स रहते हैं वो रिफिल वाले ले लो या फिर इंक पेन ले लो. इंक पेन इज द बेस्ट क्योंकि उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाता. नेक्स्ट है रिसाइकल. रिसाइकल मतलब ऐसी चीजें जो एक बार यूज करने के बाद समझो वो वापस यूज नहीं हो रही है, so you can give it to someone who has the ability to do that. You can recycle also. So solution to the problem of generating waste includes 3 R's: reduce, reuse and recycle. So this, we are up with this lesson. We have finished this lesson. Once again, I will read the only topics that we have studied, matlab the headings, so that we understand what we have done. So introduction we have done, we have seen what is waste management. Then we have seen the factors which causes waste management. Then different sources of waste: domestic waste, industrial and commercial waste, clinical or biomedical waste, agricultural waste, animal waste, nuclear waste, mineral waste, types of waste. उसमें आएगा solid waste, liquid waste and gaseous waste. क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट में आएगा हजार्डस एंड नॉन हजार्डस. नॉन हजार्डस में आएगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके. फिर अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज परसिस्टेंट, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. परसिस्टेंट वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो इजीली डिग्रेड नहीं होता या उसको डिग्रेड होने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है एंड सो ऑन. फिर रिसाइक्लेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट है जो अच्छा वेस्ट बोल सकते हैं क्योंकि उसको हम लोग अगेन एंड अगेन रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं. नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट है जो रिसाइक्लेबल के अपोजिट होता है. ई वेस्ट है जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है अभी फिलहाल. इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट, ई वेस्ट से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है ना ई वेस्ट, इसलिए इसको हाई इम्पैक्ट दिया गया. रीजंस टू हैव डिजायर टू गेट मोर एंड मोर वेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा वेस्ट क्यों जनरेट हो रहा है ये बताया गया इसमें. इफेक्ट्स टू consumerize on the environment, solution to the problem of generating more and more waste. So we have finished this chapter. I hope you have understood this chapter very well. This chapter was regarding most of the things those are having, general topic पे था, तुमको easily समझेगा. What more you have understood, please let me know. I would like to hear from you. I hope you have a beautiful day. Goodbye. Take care.